Assalamu alaikum, everyone. A warm welcome to all the attendees and our honorable speaker, Mr. Khalid Khan. To begin with, let me go through a hadith. Hubbul Watni Minal Imani. Our beloved Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, love of your country, that is patriotism, is a part of your faith, that is Iman. A true Momin loves his country dearly. He works for securing the interest of his country. Allah subhanahu wa ta'ala shall grant huge reward to the protectors of homeland. A hadith of Tirmizi says, to keep awake in the border to protect the homeland in Allah's way is better than all the treasures and between the heavens and the earth. With this note, I begin with introducing you to our organization AMP, that is Association of Muslims Professionals. We are an NGO working for the development of the community since the past 13 years, with a mission to empower underprivileged for the greater benefit of the society in general and the nation as a whole. We have a vision of a community which is ideal in terms of advancement in education, culturally vibrant, and economically dynamic. We have our registered offices in India, USA, UK, and Australia. And let me have a quick go through with the achievements that we are doing. And we are doing it through our flagship programs, one of which is a school development program, wherein we have taken more than 3,000 skill development lectures. I'm sorry, this data is a bit old, so don't mind my changing the figures, they are true. 800 plus school connected and 281,000 students benefited, which is again more. And more than 200 teachers training and parenting workshops have been conducted. Yet another flagship program of ours is Employment Assistance Cell, wherein we are providing job opportunities to the job seekers, for which we have launched a portal, empowerjobs.com, which is a platform for the job seekers and the employers. 21,000 plus candidates have been employed. 220 employability training programs have been done. We want our candidates to be industry ready. So to equipment with the latest trends, with the latest technologies and the courses that are useful for the current situation, we are conducting these employability training programs in the colleges as well as for a free as a whole, for the entire people to join. 17,000 degree students have been benefited with this ETPs of ours. Yet another endeavor of ours, which is Alhamdulillah, really helping people, is scholarships and self employment. 800 plus higher education scholarships again, so this would have crossed, I believe, now to 2000, and 860 plus orphan education and 425 plus families have been transformed by providing the livelihood. And we are doing it for the past 1 year. In last year in Ramzan, we have launched our portal called indiazakat.com, which is a crowdfunding platform bringing together the zakat seekers and the zakat donors. And this has really helped through our various causes in higher education, for medical, for livelihood. People are really getting benefited. Then we have our own resource center, which is preparing career counselors. 660 career counselors have been trained, 2,500 student councils, and 50 plus documents on career guidance, so as to have a handy material with the students. And 1,500 plus career chart distributions have been done. Again, we have bring in technology for this as well. We have launched a portal called indiamentors.com, wherein we are taking our students hand in hand right from choosing the career option to counseling them, guiding them throughout their careers. Then awards and partnerships. So we every year we conduct this uh, education awards for the outstanding teachers and those who have performed outstandingly in the field of education. We reward them, and we have partners for skill training and job fairs, including state governments, and 100 plus partner NGOs for various programs. Now, if we move on to
Just skip that. Move on to the online presence and our ground presence of AMP. We have 140 plus active chapters which are spread across 26 states with 16 countries and more than 7,000 active members. And if you look at the online presence through various social media platforms, we have crossed around 1 lakh 25, more than 1 lakh 25,000 professionals are connected with us. You can always join AMP by logging on to our website www.ampindia.org, or you can write to us with the information that is there on this screen. Thank you. Now, to begin with, I once again welcome Mr. Khalid Khan and give a brief introduction of his. He is from Shahjahanpur, UP. He joined Indian Air Force at the age of 17 in the admin branch, and his postings were in Bangalore, Gwalior, Shillong, and Mumbai. He played junior hockey tournament and represented junior services hockey team as a captain in 1982 and has represented Indian Air Force hockey team in all the major hockey tournaments throughout India. He completed his graduation and post-graduation from Osmania University, Hyderabad, and took a premature retirement from Indian Air Force with all post-retirement benefits, and has dedicated himself for the educational upliftment of the Muslim community and started St. Harris High School in 1999. After taking his retirement at the age of 32, he has been running this school and working towards the education sector, not only in terms of just providing education, but a holistic approach wherein he's counseling students, helping them in whatever way he could. In 2019, he started Hajra Girls Junior College, and he has also joined Bombay Flying Club. He conducts various educational, vocational seminars and motivates and guides the youth to join the Indian Armed Forces. So over to you, Mr. Khalid Khan. Yeah, thank you, Ms. Sofia. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Let me start this today's session with a brief introduction of the Indian Army. See, आर्मी जो है वो हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो काफ़ी एंशियंट टाइम से ही बहुत ही ब्रेव और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर के उन्होंने लड़ाई की है और पीस कायम करने में मेन रोल रहा है हमारी आर्मी का. So before I come to the main points, how to enter into the Indian Army, let me throw a brief light on the history of the Indian Army. Very first thing, the armed forces का जो biggest component है वो आर्मी होती है. Armed forces जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों को मिलाकर के बनती है, जिसमें कि आर्मी जो है दैट इज द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. हालांकि तीनों फोर्सेस यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जनरल, एयर मार्शल एंड एडमिरल जो है, चीफ एडमिरल, वो उसको कंट्रोल करते हैं. लेकिन एज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर द क्लॉज 53 रूल क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि अगर कोई वार डिक्लेयर की जाती है या कोई बात, कोई कन्फ्लिक्ट किस किस्म का आता है, तो अल्टीमेटली डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में रहता है कि वो उसको वार डिक्लेयर करें या आर्मी को ऑर्डर्स दें कि इसमें क्या रोल रहेगा उनका और किस तरीके से इसको लेके जाना है. इसकी जो ओरिजिन है यानी कि फाउंडिंग जो है उसकी 1 अप्रैल 1895 को हुई थी, यानी कि 125 साल पहले. और इसका जो रोल है वो लैंड वॉरफेयर का है और साइज इसमें तकरीबन जो है 12,37,117 जो है पर्सनल जो है एक्टिव पर्सनल है एंड मोर देन 9,60,000 जो पीपल है वो रिजर्व फोर्स जो है इंडियन आर्मी की है. इसका मेन हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और जो आर्मी का मोटो है वो सर्व बिफोर सेल्फ के हिसाब से लोग काम करते हैं, यानी कि अपने को पीछे रख करके, यानी अपने से पहले मुल्क की खिदमत करना, देश के लिए आगे बढ़ना, ये इनका मेन मकसद है. तो दिस इज द जो मोटो है इनका, सर्व बिफोर सेल्फ, यानी कि खुद से पहले मुल्क की, अपने देशवासियों की, अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करना, उनकी रक्षा करना. दैट इज द मेन मोटो ऑफ द इंडियन आर्मी. और जो कलर्स हैं इसमें गोल्ड, रेड एंड ब्लैक, जो इंडियन आर्मी का फ्लैग है
उसमें 3 कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। और आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 15 जनवरी को एवरी ईयर आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और हालांकि इसके जो 1 अप्रैल 1895 को इसका फाउंडेशन हुआ था, लेकिन 15 जनवरी जो हमने इसको आर्मी डे मनाने का फैसला किया गया, उसकी मेन वजह ये थी कि लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा took over from the Britishers as the supreme commander in chief of the Indian Army in 1949। तो इस वजह से आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो ये इसकी थोड़ी सी वो थी। और ये जो स्टार्टिंग किस तरीके से हुई आर्मी और क्या हुआ, और इसका मैं थोड़ा सा बता दूं कि बेसिकली हमारा जो मेन सेटअप है इंडियन आर्मी का वो ब्रिटिशर्स से लिया गया है। यानी कि जब मुगल यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे तो डिफरेंट स्टेट्स इंडिया में थी, और उसमें सबकी अपनी अपनी स्टेट्स की अपनी अपनी आर्मीज हुआ करती थी। उन आर्मीज में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उन्होंने उसको जो था अपना मुख्तलिफ जगहों पे जोड़ करके जिस तरीके से इंडिया पे कब्जा करना शुरू किया था, और इस तरीके से उनको लेकर के फिर जब वो कोलकाता में 1776 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंदर ये आर्मी एक डिपार्टमेंट जो है वो पैदा किया गया, उसको बनाया गया। यानी कि इंडियन आर्मी के जो 1776 में है एक आर्मी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पे डेवलप किया था। तो जो रिवॉल्ट हुआ है 1857 में, वहाँ भी देखा ये गया है कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं उन्होंने अपनी बहादुरी का बहुत मुजाहिरा किया, एंड दे केम फॉरवर्ड एंड दे फॉट लाइक एनीथिंग एंड टुक ओवर इन इवन इन दिल्ली फोर्ट आल्सो एट द टाइम व्हिच वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स। इसके अलावा 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें एक मेन वजह ये भी थी कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको इंडिया के अलावा दूर दराज की जगहों पे भी पोस्टिंग पे और लड़ाई के लिए भेजा जाता था, जो कि इंडियन फोर्सेस जो हैं उसको लड़ाई नहीं करना चाहती थी। जैसे कि बर्मा की वार हुआ, बक्सर वार हुआ, या चाइना में जो वार हुई वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स को जाना पड़ा। तो इसके अलावा भी साउथ अफ्रीका और दूसरी जगहों पर भी इंडियन आर्मी को भेजा गया। तो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ तो उसकी एक वजह ये भी थी, जहाँ दूसरी वजह थी कि इंडियन सोल्जर्स को बहुत दूर दूर भेजा जाता था। और इसके अलावा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई इन 1914 से लेकर 1918 तक, तो उसमें 1.3 मिलियन इंडियन सोल्जर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 1.3 मिलियन सोल्जर्स जो थे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, और तकरीबन 1,30,000 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939। तो ये तो था इसका वार के हिसाब से। लेकिन 3 जून 1947 को जब बंटवारा हुआ उसमें तो 10 बटालियंस थी, 10 बटालियंस में से 4 बटालियंस को जो था वो ब्रिटिशर्स ने अपने अटैच कर लिया था, और बाकी जो 6 बटालियंस बची थी वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3-3 बटालियंस के हिसाब से उसको बांट दिया गया था। तो बटालियंस में अच्छी खासी फोर्स रहती है, जो कि उसमें जो प्रोमिनेंट जो उस टाइम की फोर्सेस थी वो गोरखा रेजिमेंट एंड द सिख रेजिमेंट, जो कि अपनी बहादुरी के लिए भी जानी जाती थी, उसका डिवीजन करके 3-3 रेजिमेंट्स थी पाकिस्तान को और 3 इंडिया को दे दी गई थी। फिर शिमला एग्रीमेंट में जो था, इसमें जो फर्स्ट वार हुई इंडियन आर्मी की वो 1947 में हो गई थी, और जो तकरीबन काफ़ी टाइम चली, यानी कि 22 अक्टूबर 1947 से लेकर के 5 जनवरी 1949 तक जो है ये फर्स्ट वार हुई हमारी इंडियन आर्मी की पाकिस्तान के साथ में, ओवर द डिस्प्यूट ऑफ द JNK, यानी कश्मीर के ऊपर जो कब्जा पाकिस्तान अपना दिखा रहा था, और फिर ये जो था इंडिया जो था हम अपना क्लेम कर रहे थे, तो उसकी वजह से फाइट हुई। और जो ये वार शुरू हुई थी ये पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट की गई थी, लेकिन इसमें इंडियंस ने काफ़ी उसमें हौसले से उसका मुकाबला किया, और फाइनली एक यूनाइटेड नेशंस ने और दूसरी जगहों से जो था उसको जब सीज फायर हुई तो LOC के नाम से उसको, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के हिसाब से वहाँ पे बाउंड्री बना दी गई, और उसके हिसाब से काम चलने लगा। फिर शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 में, जो कि LOC को ही अभी उसको हिसाब से बॉर्डर्स जो है कंट्रोल किए जा रहे हैं। फिर 1962 में
साइनो इंडिया वार हुई, जिसमें कि जो ईस्टर्न साइड के जो इलाका था उसको लेकर के इंडियन फोर्सेस ने किया था। उसमें अक्साई चीन वगैरह जो था ये इलाका था, जिसमें कि 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तकरीबन मोर देन ए मंथ ये लड़ाई रही चाइना के साथ में। फिर 1965 में 23 सितंबर 1965 को इंडिया पाक वार हुई, जिसमें भी काफ़ी मतलब ये कि नुकसान हुए, लेकिन इंडियन आर्मी जो थी वो हमेशा सबसे आगे रही और हौसले के साथ में मुकाबला किया। सबसे बड़ी बात जो थी कि वो 1972 में जब ईस्टर्न पाकिस्तान यानी जो अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जो इंडियन फोर्सेस ने फाइट किया, तो वहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सामने आया कि इंडियन फोर्सेस के सामने तकरीबन 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने हथियार डाल दिए, यानी दे सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ द इंडियन आर्मी, एंड दैट इज 93,000 इज ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इट वाज ए वेरी वेरी बिग विन फॉर द इंडियन आर्मी। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि इंडियन आर्मी जो है वर्ल्ड में 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, यानी कि आपको यूएसए, अमेरिका, रशिया एंड चाइना के बाद में इंडिया का नंबर आता है। तो इंडिया इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इक्विपमेंट्स, मैन पावर एंड वैल्यू, हर चीज़ के लिहाज से इंडियन आर्मी जो है वो बहुत आगे है। अब देखते हैं कि इंडियन आर्मी में क्या वजह है और क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, आर्मी जो है एक सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि डिसिप्लिन लाइफ देती है और हर काम को करने का एक तरीका सिखा देती है, और उसमें ज्वाइन करना एक मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, और फिर डायरेक्टली नेशन को सर्व करने का मौका मिलता है, यानी कि उसमें कोई बीच में बात नहीं है। आप यूनिफॉर्म पहन करके अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, सरहदों की हिफाजत करते हैं, और किसी भी किस्म के एक्सटर्नल एग्रेशन को रोकने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये इसमें ये देखा जाता है कि ऑफिसर्स खास तरीके से दे प्ले ए वेरी प्रोमिनेंट रोल। इसका सिलेक्शन कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन किया जाता है, और जो लोग वाकई इसमें शामिल होना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्मी को, तो वो उनके लिए कुछ तरीके हैं। और मैंने जो इसको बताया कि तकरीबन 14 वेज ऐसे हैं जहाँ से आप इंडियन आर्मी को एट मुख्तलिफ एज लेवल्स पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बहुत से तरीके हैं, और सबसे बढ़िया तरीका मैं एक एक करके थोड़ा सा सबको टच करके हम चलेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इंडियन आर्मी में किस तरीके से ज्वाइन किया जा सकता है। यानी कि नंबर 1 पे हम लेंगे NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि पुणे में खड़गवासला में वाक़ है। और इसका एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 मरतबा होता है, और 12th पास के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं। एज इसकी जो है वो मैं आपको ज़रा सा कुछ वो दिखाऊंगा आपके स्क्रीन में स्लाइड्स वगैरह, देन यू कैन हैव लुक बेटर लुक। तो ये देखिए NDA का है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और इसमें एज जो है 16 एंड हाफ 10 19 एंड हाफ ईयर्स जो है इसकी एज है जो, और इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जो हैं दे कैन ओनली अप्लाई फॉर NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और इसकी ट्रेनिंग जो है 3 साल की रहती है खड़गवासला में, और ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में 1 साल की ट्रेनिंग जो है IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में की जाती है। यहाँ पर जो बच्चे 10+2 का एग्ज़ाम देते हैं वो किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, तीन स्ट्रीम के बच्चे जो हैं आर्मी के लिए एलिजिबल हैं, जबकि एयरफोर्स और नेवी में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथ्स का होना कंपलसरी है। लेकिन आर्मी के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो क्या नाम, जो इसका सिलेबस है वो ये है कि मैथ्स में आपको जो है काफ़ी कंट्रोल और काफ़ी महारत होनी चाहिए, मैथमेटिक्स जो है। और इसके साथ में है जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें कि इंग्लिश एक टेस्ट होता है और दूसरे भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर उनकी तैयारी आप 2-3 महीने अच्छे से लग के कर लेते हैं तो इसको एग्ज़ाम को पास किया जा सकता है। हालांकि इसकी जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी टफ रहता है, और इन द सेंस के तकरीबन 4 से 4.5 लाख बच्चे जो हैं हर साल इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, और इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए होते हैं लेकिन कुछ हज़ार, लेकिन फाइनली जो
एसएसबी पास करने के बाद में जो बच्चों की स्ट्रेंथ बची है वो 300 से 500 के बीच में बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं और फाइनली एनडीए की ट्रेनिंग के लिए जा पाते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो रिटन एग्ज़ाम जो पास करने के जो तकरीबन है वो 7 से 8,000 बच्चे, जो 4 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें से 7 to 8,000 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं। उन 7 to 8,000 बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं एनडीए के रिटन एग्ज़ाम में, उनको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी कहते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, वो इंशाल्लाह मैं लास्ट लेक्चर में इसके बारे में बताऊंगा कि क्या है। और वहाँ से जो बच्चे रिकमेंड होते हैं तो फाइनली मेरिट पे जो है वो 300 to 500 बच्चे अप्रॉक्सीमेटली दे आर सेंट टू एनडीए फॉर ट्रेनिंग, और उनका जो है दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ करियर। और ये एनडीए में तीनों सर्विसेज के लिए इनरोलमेंट किया जाता है, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए एनडीए में सिलेक्शन किया जाता है, जिसकी वैकेंसीज हर साल वेरी करती हैं कि कभी किसी में 150 होती है, किसी में 200 होती है, और इस तरीके से ये तकरीबन 400-500 जो कैंडिडेट्स हैं वो एनडीए में सिलेक्ट किए जाते हैं। दूसरा एग्जामिनेशन होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी कि CDSE। ये भी एग्ज़ाम जो है साल में 2 मरतबा किया जाता है, यानी कि फरवरी मार्च में इसका नोटिफिकेशन आता है और दूसरा नोटिफिकेशन होता है अक्टूबर एंड नवंबर में। यानी कि एसएसबी और फिर इसमें जो रिटन एग्जामिनेशन में पास कर जाते हैं उनको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स करने के बाद में अगेन उनको भी एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। ऑफिसर बनने के लिए डिफेंस में सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो है उसको पास करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा बोर्ड है जहाँ पे आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपकी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं कि वेदर यू हैव द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ और नो, एंड इफ यू पॉसेस दोज क्वालिटीज़, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, तो वहाँ से जो बच्चे पास होते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, दे कम इनटू द मेरिट लिस्ट एंड दे प्रोसीड फर्दर फॉर द ट्रेनिंग। तो इसमें जो आर्मी के लिए जो बच्चे होते हैं उसकी सीडीएस की जो एज लिमिट है वो 19 से 23 साल तक है, 19 to 23 years of age they can apply, and their training is conducted at IMA, Indian Military Academy, देहरादून। एंड इसमें फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग जो है OTA में होती है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, और उनकी एज भी जो है 19 to 25 ईयर्स जो है उनकी एज रहती है। थर्ड नंबर पे जो आता है टेक्निकल एंट्री स्कीम, यानी TES, ये होता है टेक्निकल एंट्री स्कीम, TES होता है। और इसमें जो है इंजीनियरिंग और टेक्निकल ब्रांच के लिए एग्ज़ाम होता है। इसका एग्ज़ाम भी साल में 2 मरतबा होता है, यानी कि ट्रेनिंग जो है इसकी 5 साल की होती है, और 10+2 अगर आपने PCM में 70% मार्क्स हासिल किए हैं एंड आपकी एज बिटवीन 16.5 to 19.5 तक है, तो यू कैन अप्लाई। एंड इन दिस ऑल्सो ओनली मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द इंजीनियरिंग ब्रांच। इसमें 4 साल के इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी 1 साल की जो ट्रेनिंग है वो OTA, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया में होती है, और 4 साल की ट्रेनिंग जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज, आर्मी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है पुणे में, वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग की जाती है। इसके बाद में 4 नंबर पे आता है आपका यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, यानी कि इसमें जो जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिया है, यानी कि BE या BTech ग्रेजुएट्स जो हैं और उनकी एज 18 to 24 ईयर्स के बीच में है, तो दे कैन अप्लाई फॉर दिस एंट्री। और उसमें भी अगेन एग्ज़ाम हैज़ टू बी थ्रू SSB, लेकिन जिनकी डिग्री है और जिन्होंने डिग्री का एग्ज़ाम दिया हुआ है, फाइनल ईयर में है, ये पास कर चुके हैं और इस एज क्राइटेरिया में बैठते हैं, तो दे कैन अप्लाई। सो दे विल बी कॉल्ड फॉर द SSB, एंड आफ्टर क्वालिफाइंग द SSB दे आर सेंट फॉर द ट्रेनिंग टू IMA देहरादून फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। इसके बाद में जो 5वें किस्म की एंट्री है वो है आपकी TGC, यानी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। इसकी भी साल में 2 मरतबा जो है एग्ज़ाम होते हैं, मई जून में एंड नवंबर एंड दिसंबर में। इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो हैं दे कैन अप्लाई। एज जो है वो 20 to 27 ईयर्स ऑफ एज होती है, और या पोस्ट ग्रेजुएट MA MSc आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स के लिए भी इसमें सिलेक्शन किया जाता है, जिनकी एज जो है 23 to 27 ईयर्स ऑफ एज रहती है। तो और नंबर 6 में आपका आता है SSC टेक्निकल एंट्री फॉर मेन, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री जो है वो मेन के लिए होती है।
शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब ये है कि दे आर गिवन द कमीशन फॉर 10 ईयर्स इनिशियली, और 10 ईयर्स के बाद में उनको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो वो 10 ईयर्स के बाद में सर्विस छोड़ सकते हैं, या फिर वो अपना जो है 10 ईयर्स के बाद में परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर तीसरी चीज़ ये है कि वो 4 ईयर्स का एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो somehow it can be extended up to 14 years of age, short service commission for men। और इसमें स्पेशल एंट्री जो रहती है, स्पेशल शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, वो 10 to 14 ईयर्स का रहता है। और उनके कंप्लीशन ऑफ ये 3 ऑप्शन दिए जाते हैं इसके, और इसमें जो है मैरिड एंड अनमैरिड दोनों टाइप के कैंडिडेट जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 7th नंबर पे आपका आता है एसएससी टेक्निकल एंट्री वीमेन, स्पेशल एंट्री फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, यानी कि जिन्होंने बीई बीटेक किया हुआ है और उनकी एज जो है 20 to 27 ईयर्स ऑफ एज है, एंड ओनली अनमैरिड वीमेन कैन अप्लाई इन दिस। तो ये लेडीज़ के लिए है, लेकिन जो अनमैरिड हैं तो दे कैन ओनली अप्लाई फॉर स्पेशल एंट्री फॉर द लेडीज़। तो इस तरीके से ये एक तरीका है, 7th तरीका, जिसमें कि आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है एनसीसी स्पेशल एंट्री नेशनल कैडेट कोर्स। जिन लोगों ने एनसीसी का किया हुआ है, एनसीसी का सर्टिफिकेट्स उनके ABC या जो भी सर्टिफिकेट है उनके पास, तो ये उनके लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन का जगह निकलती है। और इसकी जून एंड दिसंबर यानी कि साल में 2 मरतबा इसके नोटिफिकेशन आते हैं। और C सर्टिफिकेट वालों को प्रेफर किया जाता है, मिनिमम B ग्रेड चाहिए। और एज जो है इसकी 19 to 25 ईयर्स ऑफ एज होती है। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स जो है दे कैन अप्लाई फॉर द एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम। फिर इसके बाद में जो आता है जैग एंट्री, यानी कि जज एडवोकेट एंट्री जनरल ब्रांच के लिए इसमें होता है। जो जिन्होंने लॉ ग्रेजुएट्स हैं दे कैन अप्लाई फॉर दिस। LLB में कम से कम मिनिमम 55% मार्क्स उनको चाहिए। अगर उनके पास 55% मार्क्स हैं और एज जो है 21 to 27 ईयर्स ऑफ एज के ग्रुप में आप बैठते हैं, तो देन दे कैन अप्लाई फॉर जज एडवोकेट जनरल की ब्रांच के लिए। और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है ACC एंट्री, आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री। ये बेसिकली जो सर्विंग आर्मी पर्सनल है ये उनके लिए अप्लाई होता है, जो ऑलरेडी सर्विस में है और कम से कम 2 ईयर्स की उनकी आर्मी की सर्विस हो चुकी है, तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसका नोटिफिकेशन जो है मार्च एंड अगस्त में इसका 2 बार में नोटिस आता है, नोटिफिकेशन आता है। और इसकी 4 साल की ट्रेनिंग है, 3 ईयर्स एंड 1 ईयर इन आई में। तो 10+2 ईयर्स आर्मी सर्विस इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि जिन्होंने 10+2 12th पास किया हुआ है और 2 साल की आर्मी की सर्विस हो गई है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस। एंड एज क्राइटेरिया जो है 20 to 27 ईयर्स ऑफ एज, दे कैन अप्लाई फॉर दिस एंट्री। 11th नंबर में आएगा आपका SCO एंट्री, यानी कि स्पेशल कमीशन ऑफिसर एंट्री। इसमें भी यानी कि जो ऑलरेडी आर्मी में सर्विस कर रहे हैं और JCO रैंक के हैं या NCO हैं या OR रैंक्स के हैं, सोल्जर्स हैं, तो ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इफ दे हैव द रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया। यानी कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो भी अप्रैल एंड जुलाई में आता है। और 10+2 + 5 ईयर्स ऑफ सर्विस इन आर्मी, जिन्होंने 5 साल की सर्विस हो गई है आर्मी में और 10+2 पास किया हुआ है, तो दे कैन अप्लाई फॉर दिस टाइप ऑफ कमीशन। और इसमें एज का रिलैक्सेशन खास है कि जो एज जो है जिनकी 28 to 35 ईयर्स ऑफ एज है, दे आर एलिजिबल एंड दे कैन अप्लाई फॉर दिस। फिर इसके बाद में 12th नंबर पे आता है आपका PCSL एंट्री, यानी परमानेंट कमीशन स्पेशल लिस्ट। यानी कि इसमें सिर्फ JCO, NCO एंड OR जो ऑलरेडी सर्विंग पर्सनल हैं, लेकिन जिनकी एज जो है अबव 40 ईयर्स हो गई है एंड मिनिमम सर्विस 10 ईयर्स हो गई है, तो दे कैन अप्लाई। ये मतलब एक अलग से सिलेक्शन का और प्रमोशन टू ऑफिसर रैंक के लिए ये आर्मी जो है अपॉर्चुनिटी देती है अपने सर्विंग पर्सनल के लिए कि वो इसको यूज़ करें और इसमें कमीशन हासिल कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन अप्रैल एंड जुलाई में आता है और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10+2 होना कंपलसरी है। आर्मी में पढ़ाई के बहुत से मौके मिलते हैं, स्पोर्ट्स के भी बहुत चांसेस मिलते हैं, तो इसके लिए बेहतर है कि जो भी आर्मी ज्वाइन करें या
वहाँ पे सर्विस कर रहे हो, तो वो दे कैन कंटिन्यू विद देयर एजुकेशन एंड दे कैन कीप स्टडी फर्दर। इसके बाद में आता है आपका टेरिटोरियल आरबी, परमानेंट कमीशन स्पेशलिस्ट। ये जो है सर्विस जो होती है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है, और ये बैकअप टू इंडियन आर्मी के तौर पे काम करती है। इसमें जो ग्रेजुएट्स हैं दे कैन अप्लाई, और लेकिन इसकी एज जो है वो काफ़ी रिलैक्स रखी गई है, यानी कि 18 ईयर से लेकर के 42 ईयर्स की एज तक जो टेरिटोरियल आर्मी है और जो लोग आर्मी में सर्व करना चाहते हैं दे कैन अप्लाई इन दिस, बट ओनली मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब मैं आपको बताऊं कितना हो गया। इसके बाद में जो है जो मेनली आर्मी, ये कमीशन की बात तो ऑफिसर्स के लेवल की हो गई, जिसमें ये हर आदमी ऑफिसर बन नहीं पाता है और काफ़ी लोगों को परेशानी भी हो जाती है कि मतलब वैकेंसीज कम होती हैं और लोग ज़्यादा होते हैं, किस तरीके से उसको कर पाएंगे। तो ये मैं आपको बताऊं कि आर्मी में इंडियन रैली जो होती है उसमें किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं एज ए सोल्जर। तो एज ए सोल्जर ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आता है आपके लिए जनरल ड्यूटी की वैकेंसीज, यानी कि इसमें एज 17.5 से लेकर के 21 साल की एज होना चाहिए, और सिर्फ 10th क्लास पास जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन अप्लाई फॉर दिस ब्रांच, जनरल ड्यूटी ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है कि पहले इसका रिटन टेस्ट होता है, और रिटन टेस्ट में जो लोग बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, उसमें इंग्लिश और मैथ्स का हल्का सा टेस्ट रहता है, उनको फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में भी मतलब जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो उनको फिर फर्दर आर्मी के जो मेडिकल है उसमें पास होना पड़ता है। तो जनरल ड्यूटी में मेनली जो फाइटिंग का काम है, यानी कि जो गन लेकर के फाइट करना है, या कमांडोज का सिलेक्शन जो है वो जनरल ड्यूटी के लोगों में से ही किया जाता है। जो ये आर्म पर्सनल जो होते हैं 10th पास क्वालिफिकेशन इनकी चाहिए होती है, तो इनको मेनली फाइटिंग के लिए, इन्फेंट्री के लिए ट्रेन किया जाता है, और यहीं से लोगों को सिलेक्शन करके उनको आर्मी की जो कमांडो फोर्स वगैरह है तो वहाँ के लिए भी इनको इनरोल किया जाता है। इसके बाद में जो है दूसरा जो इसमें पोस्ट निकलती है वो क्लर्क स्टोर कीपर्स की निकलती है। इसमें एज में थोड़ा रिलैक्सेशन है कि 17.5 से लेकर के 23 ईयर्स ऑफ एज तक के लोग जो हैं इस पर अप्लाई कर सकते हैं, और 10+2 इस पर पास होना कंपलसरी है किसी भी स्ट्रीम से, और मिनिमम पास परसेंटेज जो है इसकी 60% होना चाहिए। हालांकि 10th में पासिंग परसेंटेज की कोई कैद नहीं है, जो 10th पास के लिए जनरल ड्यूटी के लिए जो अप्लाई करते हैं सोल्जर के लिए, तो उनके लिए कोई कैद नहीं है कि कितनी परसेंट हो, सिर्फ पासिंग मार्क्स भी अगर हैं तो दे कैन अप्लाई फॉर दिस टेस्ट। लेकिन क्लर्क एंड स्टोर कीपर के लिए जो है इनको 12th पास होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, और किसी भी स्ट्रीम से हो तो ये उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जो आता है वो आपका आता है टेक्निकल एंट्री, यानी कि एज इसमें भी 17.5 से 23 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए, और पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स में मिनिमम 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। अगर 50% मार्क्स नहीं होंगे तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और इनको लेकर के फिर एज ए टेक्नीशियन, एज एन इंजीनियर जो है वहाँ पे आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है, और जो कि वहाँ पे एज ए टेक्नीशियन, क्योंकि हर किस्म के लोगों की वहाँ पे खपत है और काम भी है, तो मुख्तलिफ किस्म के ट्रक्स हैं, बसेस है, और जो टेक्निकल काम हैं, गन्स हैं, उनको रिपेयर करने का और उसको ठीक करने का काम जो है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट का रहता है। इसके बाद में जो है आपका नर्सिंग असिस्टेंट, यानी कि मेडिकल असिस्टेंट जिनको बोला जाता है, उनका सिलेक्शन होता है। उनकी एज जो है 17.5 से लेकर 23 ईयर्स ऑफ एज होती है, 10+2 पास होना चाहिए, लेकिन इसमें पीसीएम की जगह यहाँ पे पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में उनके मार्क्स 50% होना चाहिए, और इसके लिए भी उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर एज ए मेडिकल असिस्टेंट यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट के हिसाब से उनको हॉस्पिटल्स में और दूसरी जगहों पे इनकी जो है तैनाती की जाती है। फिर इसके बाद में आता है ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन जो है उनकी क्वालिफिकेशन जो है 8th पास हैं,
या 10th पास हैं या ITI वगैरह उन्होंने किया हुआ है, तो उनको दे कैन अप्लाई फॉर द ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन में क्या है कि इसमें एज जो है 17.5 से 23 ईयर्स है। और ट्रेड्समैन का काम जो है जैसे कॉबलर हो गया, आपका बार्बर है, या इस किस्म के छोटे मोटे काम हैं, जो शॉफर्स हैं या आपके वेटर्स वगैरह हैं, तो इस किस्म के काम जो आर्मी में रहते हैं तो ये काम उसके लिए किया जाता है। लेकिन इसमें हर किस्म की फैसिलिटी जो है आर्मी पर्सनल की वो इनको मिलती है, इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, गन वगैरह भी चलाना सिखाया जाता है। तो ये इनकी एक अलग से चीज़ जो है वो ट्रेड्समैन के लिए जो 8th पास हैं, 10th पास हैं या ITI पास है, तो दैट दे कैन डू इट, दे कैन अप्लाई फॉर द ट्रेड्समैन जॉब। और एज उनकी 17.5 से 23 ईयर्स ऑफ एज जो है इतनी काफ़ी है। इसके बाद में जो है एक स्पोर्ट्समैन का कोटा रहता है। स्पोर्ट्समैन में आपको जो है एज जो है 17.5 से 23 ईयर्स होना चाहिए। पहले स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या कोई मेडल आपने जीता हुआ है तो वो चल जाता था, लेकिन अभी इस किस्म का नहीं चलता है, बल्कि आपको नेशनल में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और फर्स्ट 3 कैटेगरी में आना चाहिए। यानी कि आपको गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल्स जो है वो अगर इंडिविजुअल इवेंट्स आप खेलते हैं, टेनिस है या कोई ऐसा गेम जो आप इंडिविजुअली रेफर करते हैं वो खेल रहे हैं, और अगर टीम वर्क है आपका, यानी कि क्रिकेट है या हॉकी है या फुटबॉल वगैरह है, तो उसमें आपकी टीम जो है सेमीफाइनल में भी आपको 3rd रैंक तक आपको उसको क्वालिफाई किया हो, तो वो लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं, दे कैन अप्लाई फॉर दिस। एंड देयर इज नो रिटन एग्जामिनेशन फॉर स्पोर्ट्समैन, they are directly called based on their certificates, achievements, whatever they have, and then they are given the uh, this thing ट्रेनिंग। उसके बाद में ट्रेनिंग पे भेजा जाता है कि स्पोर्ट्स की ड्यूटीज के लिए। और NCC सर्टिफिकेट जिनके पास है, अगर C सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, उनको इजीली पास हो जाते हैं, और 100 में से 32 मार्क्स जो है होना उनका कंपल्सरी होता है। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि ये आपका इसके बाद में जो ये रिटन टेस्ट करने के बाद में जो बच्चे इसमें रैली के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, उनको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जाना पड़ता है, जिसमें 1600 मीटर्स की रेस होती है, यानी कि 1.6 किलोमीटर्स रनिंग रहती है, जिसको कि 5 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है। हालांकि इसमें जो ग्रुप ए यानी कि 5 मिनट 30 सेकेंड्स में जो बच्चे कंप्लीट कर देते हैं ये 1.6 किलोमीटर की रेस, तो उनको ग्रुप ए दिया जाता है, जो 30 से लेकर 45 सेकेंड तक यानी कि 5 मिनट्स 45 सेकेंड के बीच में करते हैं, तो उनको ग्रुप बी में दिया जाता है। और जो लोग इसके बाद में कंप्लीट करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1600 की जो रेस है, 1600 मीटर्स की रेस, दैट प्लेज ए मेजर रोल विद योर स्टैमिना एंड रनिंग स्टेप्स। तो रैली में जाने से पहले अगर 2-4 महीने पहले से रनिंग की प्रैक्टिस कर ली जाए और टाइमिंग सेट करके देख लिया जाए कि आप 5 मिनट 45 सेकेंड के अंदर 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर अगर आप रन कर रहे हैं, तो यू कैन क्वालिफाई द रेस। फिर इसके बाद में सेकंड टेस्ट होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट में पुलअप्स। इसमें एज मेनी एज पुलअप्स, कम से कम 10 पुलअप्स तो करना ही पड़ते हैं, और मिनिमम 6 पुलअप यानी कि इतना होना चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, देन यू गेट द मार्क्स। फिर लॉन्ग जंप होती है। लॉन्ग जंप में आपको कम से कम 9 फीट का एरिया जो है वो जंप करना पड़ता है, और इससे ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कुछ मार्क्स वगैरह नहीं है। फिर इसके बाद में जिग जैग बैलेंस करना आपको आना चाहिए, यानी कि कुछ स्ट्रक्चर दिया जाता है लकड़ी का छोटा सा, उसके ऊपर आपको जिग जैग पोजिशन में तेजी के साथ में बैलेंस करना होता है। तो ये कुछ टेस्ट रहते हैं छोटे से थोड़े से फिजिकल फिटनेस के लिए। इसके कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है। मेजर अगर देखा जाए तो सिर्फ रनिंग रेस है जो कि 1600 मीटर की है, और 5 मिनट्स 45 सेकेंड्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है, और दूसरे आपके पुलअप्स हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आप बहुत आसानी के साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, और जितने भी नौजवान लड़के हैं इतना काम तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस प्लेज ए मेजर रोल इन द आर्मी, तो फिजिकली तो आदमी को फिट होना ही चाहिए। फिर इसका तीसरा स्टेप जो है वो मेडिकल है, और मेडिकल जो जाहिर सी बात है कि जो हाइट है वो कम से कम 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा है। एरियाज़ के हिसाब से, यानी कि जो अगर हिल एरिया है तो वहाँ पे रनिंग रेस में भी टाइम का कंसेशन दिया जाता है, इवन हाइट में और दूसरी चीज़ों में भी कंसेशन दिया जाता है। इसी के साथ में जो चेस्ट फुलाने की
कंडीशन है वो ये है कि आपको जो भी आपका चेस्ट का साइज है वो 5 सेंटीमीटर यू शुड बी एबल टू एक्सपैंड, यानी कि आप जब हवा अंदर सीने में लें तो यू शुड बी एबल टू एक्सपैंड योर चेस्ट बाय 5 सेंटीमीटर्स. So it is very important. So yes, some of the major basic points I have discussed to join Indian Army, and those who are interested, they can look for the notifications. Generally, most of the exams जो हैं वो साल में 2 मरतबा होते हैं, और अगर इसमें आप थोड़ी सी तैयारी करके या कुछ बुक्स वगैरह भी जो अवेलेबल है मार्केट में उनको भी रेफर कर सकते हैं. इवन सब प्राइवेट कोचिंग्स जो हैं वो भी मुख्तलिफ जगहों पे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, खास करके पंजाब में बहुत ज़्यादा हैं, दिल्ली में भी हैं, और यहाँ हमारे महाराष्ट्र में भी, पूना और दूसरे इलाकों में भी काफ़ी इस किस्म की कोचिंग्स हैं जो आपको एसएसबी के लिए या दूसरी और एग्ज़ाम के लिए जो है आपको ट्रेनिंग देते हैं. रिटन एग्ज़ाम में भी आपको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ तक कि एनडीए एग्ज़ाम की भी कोचिंग आपको दी जाती है. अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन अप्लाई, यू कैन कॉन्टेक्ट एनी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट and take 1 or 2 years of coaching to qualify NDA or CDSE examination, and it is not something very difficult. लेकिन आपको डिटरमिन्ड होना चाहिए कि आप इसको अप्लाई करके डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी में सर्व करना चाहते हैं, अपने नेशन को सर्व करना चाहते हैं. So that's the end of my talk for the Indian Army, inshallah. Thank you very much. Thank you, Mr. Khalid. Thanks a lot. It was very informative, quite comprehensive, right from the entrance exam to the various law students, ex-servicemen, sportsmen. You have summarized all the profession. How can they enter into the Indian Army? Thanks a lot for the presentation. But I too have many questions, and our participants do have questions. But prior to Yes. taking to them, I would like to introduce to you Mr. Abdul Razak Sheikh, who is the head of all the project of us. He is also having some questions to ask. So over to you, Razak bhai. अस्सलाम वालेकुम खालिद सर. वालेकुम अस्सलाम. हाँ बोलिए रज़ा सर. जी सर. सर जो हम बच्चों से जब भी करियर के बारे में सेशन लेते हैं, बच्चों को आर्मी के बारे में बताते हैं, जी. तो बच्चों के जहन में सर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होती नहीं है. राइट. टिपिकली हमें जब हम कॉलेज में या स्कूल के बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं तो उसमें से मैंने काफ़ी टाइम में ये देखा है, वहाँ की जो फीमेल्स बच्चियाँ होती हैं वो उठ के आती हैं, बोलते हैं सर आपके हिसाब से हमें आर्मी में किस किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहिए, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर दैट. तो थोड़ा सा सर फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं उनके लिए सर. आजकल तो गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ कर दी हैं कि यानी फीमेल के लिए तमाम अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी हैं. हर जगह पे इस टाइम फीमेल जो है वो पार्टिसिपेशन कर रही हैं, ऑफिसर लेवल में खास तरीके से पहले अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है, और यहाँ तक कि अभी तो कम्बेटेंट रोल में भी, यानी फाइटिंग के रोल में भी वीमेन को ले लिया गया. नेवी में भी शिप के ऊपर भी अलाउ कर दिया गया उनको, और पायलट्स भी बन गई, यहाँ तक कि फाइटर पायलट बन चुकी हैं वीमेन. तो अभी कोई लिमिटेड नहीं है कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं. हाँ, कुछ जगह पर रिस्ट्रिक्शन है, जैसे एनडीए वगैरह में अभी तक ओपन नहीं किया है गर्ल्स के लिए, लेकिन बाकी तमाम जगहों पे और डिफरेंट वेज से दे कैन ज्वाइन द फोर्स एंड दे कैन सर्व द नेशन. इवन इन द इंजीनियरिंग फील्ड ऑल्सो, जैसे कि मैंने बताया कि आर्मी में भी इंजीनियरिंग के विमेन के लिए एंट्री स्कीम जो है वो स्पेशल एंट्री स्कीम है उनके लिए. सिमिलरली एयरफोर्स और नेवी में भी इसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए अवेलेबल है. बस ये है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कब कब वैकेंसीज आ रही हैं और उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं. थैंक यू सर. सर दूसरा क्वेश्चन ये था, बहुत से बच्चे बच्चियां हमें बोलते हैं कि हमें मेडिकल फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है. तो आर्मी में भी सर मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, काफी पोजीशंस होते होंगे, तो सर उन बच्चों के लिए हम क्या गाइड करें सर? उनके लिए तो बेहतरीन ऑप्शन है कि वो नीट वगैरह तो क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो है पुणे में है, और वहाँ पर ये सिलेक्शन करके एंट्रेंस एग्जाम लेकर के, लेकिन हाँ वहाँ भी एसएसबी का मसला रहता है कि एसएसबी को क्वालिफाई करके डायरेक्ट वो अपने यहाँ ही ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि फीस भी देना नहीं पड़ती है गवर्नमेंट के एक्सपेंस के ऊपर. आर्म्ड फोर्सेस एएफएमसी बोलते हैं उसको, मेडिकल कॉलेज जो है पुणे में, और वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग की जाती है एंड दे बिकम ए डॉक्टर. इंटर्नशिप के बाद में दे गेट द कमीशन एज ए कमीशन ऑफिसर. डॉक्टर जो है बन करके वो डिफरेंट पोजीशंस में पोस्ट किए जाते हैं, और इसमें मेल फीमेल दोनों डॉक्टर्स बनते हैं. इसमें लिमिट नहीं है, दोनों लोग जा सकते हैं इसके अंदर. तो ये बच्चों को सर नीट एग्जाम के थ्रू ही होता है या फिर कोई और एग्जाम भी देना होगा?
नहीं, नीट तो क्वालिफाई करें ही, लेकिन इसका आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज का अलग से एग्जाम भी होता है, तो उसको क्वालिफाई करके दे कैन अप्लाई फॉर दिस। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर जिस तरह से मेडिकल के बच्चों के जहन में होता है कि वो आर्मी के लिए कुछ करना चाहते हैं, बहुत से हमारे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो आज बीई कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके जहन में भी होता है कि ना आगे या तो पढ़ाई में आर्मी की कोई कॉलेज हो तो उसमें जाके आर्मी में एंट्री कर सके, या फिर हम हमारी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आर्मी में कोई इंजीनियरिंग प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सके। तो इसके बारे में सर आपकी क्या राय है? हाँ, ये तो मैंने बताया। देखिए 10+2 के बाद में भी डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री स्कीम रहती है, और इंजीनियरिंग का कोर्स जो है वहीं पे कराया जाता है, आर्मी में ही करा देते हैं उनको इंजीनियरिंग का कोर्स। तो ये तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि 10+2 करने के बाद में वो अपने एक्सपेंस के बजाय में आप आर्मी के यहाँ सिलेक्शन हो जाए, और वहाँ पर आप इंजीनियरिंग करके एज एन ऑफिसर यू कैन ज्वाइन देन एंड देयर इटसेल्फ। या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग बाहर कर ली है तो उसकी भी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, और वैकेंसीज आती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो उसमें भी आप अप्लाई करके जा सकते हैं। तो ये कोई मसला नहीं है। देखिए असल में क्या है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये पूरी खुद एक अपनी दुनिया अलग है। यानी कि यहाँ पे हर किस्म के प्रोफेशंस के लोगों की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है, तकरीबन हर प्रोफेशन के लोग रहते हैं। और अगर उनको, यानी कि आपने देखा होगा कि डिफेंस वाले जो हैं किसी भी सिविल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, यानी दे आर सेल्फ सफिशिएंट। यानी उनके पास अपने खुद के ड्राइवर्स होते हैं, अपने खुद के मैकेनिक होते हैं, खुद अपने तमाम काम जितना भी होता है वो खुद अपने आप करते हैं। अकाउंटेंट्स उनके पास होते हैं, सीए अपने रहते हैं, क्लर्क्स अपने होते हैं, यानी फुल एक जो छोटी फैमिली होती है, तो उसको मैनेज करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो तमाम चीज़ें डिफेंस में होती हैं। तो उस हिसाब से हर ट्रेड के आदमी, हर प्रोफेशन के आदमियों की खपत जो है वो आर्म्ड फोर्सेज में होती है। अब लोगों को मालूमात नहीं होती तो इसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम होती है कि अब जैसे लॉजिस्टिक्स में है या इंजीनियरिंग में है, तो मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस जो इंजीनियरिंग की हैं वो आर्मी में लगती हैं। तो इसमें कोई ऐसा मसला होना नहीं चाहिए, अपनी पसंद का अपने हिसाब से जो है वो उसमें जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ा रिस्पेक्टेबल जॉब है, यूनिफॉर्म पहनकर भी आप यू फील प्राउड कि हाँ आप जो है यू आर सर्विंग द नेशन डायरेक्टली। तो दिस इज रियली वेरी गुड सर्विस इन फैक्ट। सर यूनिफॉर्म का जो प्राइड होता है सर, वो तो सिर्फ हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए नहीं, पूरे मोहल्ले के लिए होता है, पूरी कम्युनिटी के लिए होता है। तो जी दैट्स जी अ जी। प्राइड एंड बिग थिंग फॉर द एवरी वन ऑफ अस। सर नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, जो कुछ लोग करियर आर्मी में बनाना चाहते हैं, एंड सम ऑफ देम शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाते हैं, जो 5 साल या कुछ साल गुजारते हैं, और उसके बाद फिर वो अपनी नॉर्मल सिविलियन लाइफ में आ जाते हैं। तो सर आर्मी जी से सिविलियन लाइफ में मूव होते वक्त किस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है सर? एक नॉर्मल सिविलियन से बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती होगी क्योंकि एक ट्रेन ऑफिसर आ रहा है उनके पास। तो उसके बारे में जी सर जी, आपकी क्या राय है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, बल्कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने भी दिया हुआ है। और इसके अलावा जितने भी प्राइवेट कंपनी हैं या कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो प्रेफर करती हैं डिसिप्लिन्ड आदमी को, ईमानदार होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि डिफेंस में जो भी जाता है वो ईमानदार रहता है, और नहीं भी होता है तो खुद से बन जाता है। और दूसरी बात यह है कि डेडिकेटेड होते हैं, टाइम ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि टास्क को कंप्लीट करना जानते हैं, जो कि आर्मी में रहकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी कि आपको कौन सा काम कितने सिस्टमेटिक तरीके से कैसे करना है, कैसे रिजल्ट लाना है, ऑल दिस क्वालिटीज जो हैं वो डिफेंस में डेवलप बहुत आसानी से हो जाती हैं। हालांकि शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है ट्रेनिंग पीरियड में एडजस्ट करने के लिए, कि जब लेकिन एक लाइफ स्टाइल समझ में आ जाता है ट्रेनिंग में कि किस तरीके से आर्मी फंक्शन करती है या डिफेंस में काम करना पड़ता है, तो दैट बिकम्स रियली यूजफुल। यानी कि इवन टुडे, आज भी मुझे जो है, हालांकि मुझे सर्विस छोड़ करके 95 में मैंने 90 प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया था, 25 साल हो गए हैं तकरीबन। तो इवन टुडे आई एम यूज्ड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड इन द सेंस कि मैं 10:30 को सो जाता हूँ और सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। लोग तो सरप्राइज भी करते हैं कि बॉम्बे में कैसे आप अभी तक इतना मतलब मेंटेन करके रखे हो। मैंने कहा भाई मुझे ये नेचुरल जो सोना और उठना है, और सिमिलरली मेरे खाने के, नाश्ते के, हर चीज़ के टाइमिंग्स बने हुए हैं इवन आज भी। टू सर्टेन एक्सटेंट आई एम मेंटेनिंग माई हेल्थ ऑल्सो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। और फिर क्या है कि हम टाइम पे, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, टाइम के ऊपर काम करना, टाइम पे शुरू करना। ऐसा नहीं है कि सिविल में नहीं है लोग, ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन लूजनेस भी काफ़ी है, और इतने आइडियाज़ भी नहीं होते हैं, जो कि डिफेंस में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एंड या आई रियली लव द लाइफ, इसमें कोई शक नहीं। जी सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टैब्यू है, थोड़ा सा फैमिली मतलब पेरेंट्स के दिमाग में थोड़ा सा रहता है कि ना
क्या आर्मी में हमारे कम्युनिटी के लोग है कि नहीं है, कैसे है, क्या है, वो थोड़ा सा टैबू हो जाता है। सेकंड कनेक्शन टू दिस सर, कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन या एज ए कम्युनिटी हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। एक चीज तो क्लियर है कि हमारे बच्चों में अवेयरनेस नहीं है, वो क्रिएट करना जरूरी है। इसके अलावा कम्युनिटी को क्या करना चाहिए जिससे हमारे लोग एटलीस्ट पार्टिसिपेशन में तो जाए। जब 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 इसके एग्जाम आते हैं उसमें आई एम श्योर हमारे बच्चे का पार्टिसिपेशन 1% भी नहीं होता होगा। हाउ टू टेक इट फ्रॉम 1% टू 5% और 10%, क्या करना चाहिए सर? उसके लिए ही कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पहली चीज़ तो ये कि जो हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है और थोड़ी बहुत अवेयरनेस है भी, तो दिमाग में कुछ थोड़ा सा बयास बैठा हुआ है कि हमें तो कोई लेगा नहीं, बीइंग ए मुस्लिम हमें कोई लेगा नहीं। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, आर्मी का, डिफेंस का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है क्वाइट ट्रांसपेरेंट है, और बहुत ही मतलब ये कि क्यों मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं पे भी किसी किस्म का कोई बायस या पार्टिशंस किसी किस्म का भी जो है किस आपको डिग्रेड किया गया हो किसी भी लेवल पे। हाँ, ये है कि आपके अंदर टैलेंट है, आप इफ यू आर एबल टू डू समथिंग तो यू आर ऑलवेज गिवन द प्रेफरेंस। अब ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे मुस्लिम्स जो हैं वो बहुत ही कम है, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। इट इज़ मैं समझता हूँ कि लेस देन 2% शायद होंगे मुस्लिम्स, बहुत ही कम मुस्लिम्स हैं। हालांकि आर्मी में ख़ास तरीके से इमाम वगैरह जो हैं, यानी कि रिलीजियस हेड्स की हैसियत से भी इनरोलमेंट होता है। और जो बटालियंस बड़ी हैं जहाँ पे मुस्लिम्स कुछ हैं रिजनेबल नंबर में, तो वहाँ पे एक इमाम भी अपॉइंट किया जाता है, और वो उनको नमाज और जो उनकी दीनी जो बातें रहती हैं उसको कवर अप करते हैं। तो इस किस्म का और किसी किस्म का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जहाँ भी रहें आप अपना रोज़ा नमाज वगैरह जो है कर सकते हैं। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है किसी किस्म की भी। लेकिन यह है कि आपको ड्यूटी तो ड्यूटी है, ड्यूटी तो हर जगह करनी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्मल लाइफ में भी अगर लोग नहीं पढ़ रहे हैं और सिर्फ आर्मी को लेकर के कहते हैं कि वहाँ पे नहीं करने दिया जाता, तो ये थोड़ी सी गलत बात है। और हमें अगर वहाँ पर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि माहौल भी अच्छा बनेगा और हमारे लोगों में भी अवेयरनेस आएगी। और फिर ये है कि आप एक ट्रेंड हो जाते हैं, जो कुछ ट्रेनिंग आप वहाँ लेते हैं वो तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आप रिटायरमेंट होकर के बाहर भी आ रहे हैं या शॉर्ट सर्विस कमीशन लेने के बाद में भी अगर आप बाहर आ रहे हैं, तो सारी टेक्निक्स, सारी ट्रेनिंग जो है वो आपको फ्री में मिल जाती है वहाँ से। और फिर एक अच्छे उसके साथ में आप जब बाहर आते हैं तो यू गिव द रिजल्ट्स। और मैंने ये देखा है कि जो भी एक्स सर्विसमैन बाहर आते हैं सर्विस छोड़ करके, तो दे आर ऑलवेज गिवन द प्रायोरिटी एंड दे आर टेकन ऑन फर्स्ट। अगर हम यहाँ पे अपनी जो फ्लाइट्स देखते हैं, अपना सिविल एविएशन का मैं बात करूँ, तो मैक्सिमम नियरली 60 to 70% पायलट्स जो हैं वो एयरफोर्स के हैं, जिन्होंने एयरफोर्स में सर्विस करने के बाद में सर्विस छोड़ी है, एंड दे हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट। तो ये जाहिर सी बात है कि उनको ऑन प्रायोरिटी जो है सिलेक्शन हो जाता है, एंड दे आर डिसिप्लिन्ड ऑल्सो टाइम। तो इस तरीके से बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत रहती हैं डिफेंस पर्सनल के लिए। और ये है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन तो बहुत ही अच्छा है कि 10 ईयर्स आप वहाँ पे रहिए, आ जाइए। हाँ, ये है कि पेंशनेबल सर्विस के लिए 15 साल की सर्विस होना कंपलसरी है। तो आई डिड कंप्लीट माई 15 ईयर्स ऑफ सर्विस, और 32 साल की एज में मैंने सर्विस छोड़ दी, तो आई एम गेटिंग पेंशन ऑल्सो एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो ये एक अच्छी बात होती है कि आप जितनी जल्दी ज्वाइन करें, जितनी जल्दी छोड़ दें, तो देन यू कैन डू समथिंग इन सिविल लाइफ एज वेल। और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो देयर इज नो स्टॉप, यू कैन कंटिन्यू एट द एज ऑफ 56-57 ईयर्स, टिल आपका जो है सुपर एनिमेशन नहीं होता है, तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और प्रमोशंस और सैलरी वगैरह सब चीज़ अच्छी है, प्लस प्रिविलेजेस बहुत अच्छे हैं डिफेंस में, जो कि और जगहों पे आमतौर पे नहीं मिलती है। सर, सर्विसेज और प्रिविलेज की जो आपने बात की है, मैं पर्सनली नेवी नगर में गया था जो बॉम्बे में है। तो जी, आई हैव सीन द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इट इज देयर एंड द टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ नेवी ऑफिसर ओवर देयर। सो वन थिंग इज वेरी यस, क्लियर कि हमारा ही, हमारे जो आने वाले नेक्स्ट पीढ़ी है, हमारे बच्चों की लाइफ में भी तब्दीली आएगी अगर हम लोग वहां पर जा सके तो दैट इज इंपॉर्टेंट बिल्कुल थिंग। तब्दील आएगी। जी, एक लास्ट क्वेश्चन सर, बिकॉज बाकी ऑडियंस के पास काफी क्वेश्चंस रहेंगे। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर, एएमपी जैसे जो इदारे हैं जो नेशनल लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन में और बच्चों को करियर पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग चीज में बताया जाए, राइट? तो एक चीज होती है इंफॉर्मेशन पास करके बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करना, राइट? दूसरा होता है कि उनके लिए एंड टू एंड जर्नी तैयार करना, कि बच्चों को जैसे कि अभी हम देखते हैं कम्युनिटी में बहुत ही जज्बे के साथ लिया कि हमारे बच्चे आईटी में जाना चाहिए। तो पूरी कंट्री में सुपर 30 लाइक अलग अलग बैच बन रहे हैं जहाँ पर बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज लॉट ऑफ सक्सेस रेशियो जो हो रहा है। हमने वो आईटी में देखा, फिर हमने वो नीट में देखा, अब हम देख रहे हैं आईएम्स के लिए भी तैयारियां हो रही है, यूपीएससी के लिए तैयारियां हो रही है। तो लेकिन सर अब तक कम्युनिटी में वो डिफेंस को लेके वो अभी तक
वो आया नहीं है कि हमें डिफेंस के लिए भी इसी तरह में कोशिश करना चाहिए। तो सर आपके हिसाब से सर एएमपी जैसे इदारों को मतलब क्या इस चीज में पहल लेना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे हम लोग एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर बन के बच्चों को राइट फ्रॉम ट्रेनिंग सिलेक्शन से लेके उस लेवल तक लेके जाए कि वो वहां पर एंट्री कर पाए? AMP is doing a very, very commendable job. I must congratulate Amir Idrisi Saab and you people all. You are dedicated and doing a lot of things for the community. Alhamdulillah. I really admire AMP. The AMP is doing a very big task and you are covering so many things. It is really remarkable. Remarkable things. तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी चीज़ को ये है कि हम थोड़ा सा अगर मास मूवमेंट की हैसियत से ये चीज़ डेवलप हो जाए, यानी कि इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू ओनली, जिसको कहते हैं कि चंद लोगों तक बात न रह करके जो लोग भी इसको सुन रहे हैं वो भी आगे अगर प्रमोट करें और एक ये चेन लिंक बन जाए, और अगर माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा होने लगे मुकाबले इसके कि हम थ्रू बैनर्स या थ्रू वीडियोज़ अगर हम उसको पब्लिसाइज कर रहे हैं, तो उसकी जगह पे अगर ये माउथ पब्लिसिटी होने लगे तो लोग इजीली कन्विंस हो जाते हैं। तो माउथ पब्लिसिटी जो है वो बहुत ही जेन्युइन और प्योर सर्विस रहती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर हम कितनी पब्लिसिटी करते हैं लेकिन अगर अपने बाजू वाले अंकल से पूछ जाए कि अंकल मैंने 10th पास किया, मुझे किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को कह दिया ठीक है कॉमर्स में चले जाओ, तो वो कॉमर्स में चला जाता है। तो ये होता है खुद से पर्सनली किसी चीज़ को बताने का। तो इसमें पेरेंट्स यानी जो एल्डरली लोग हैं तो उनका भी एक मैं अहम रोल समझता हूँ कि वो थोड़ी सी अवेयरनेस लाएं और अपने बच्चों के अंदर भी ये बेदारी पैदा करें कि डिफेंस इज़ द वेरी बिग एंड सेफ ऑप्शन और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि उसको ज्वाइन करें और उसके लिए तैयारी करें। और जाहिर सी बात है कि हर आदमी तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है, जिनके अंदर अहलियत है और जो प्रूव कर सकते हैं वही लोग उसमें सेलेक्ट होंगे, क्योंकि जो अभी हमारे NDA वगैरह के और CDS वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें लाखों में बच्चे बैठते हैं, लेकिन कुछ हज़ार बल्कि कुछ 100 जो है फाइनली सेलेक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ में कुछ पार्शियलिटी की जा रही है, बल्कि जो प्रूव करते हैं दे आर एबव एवरेज, दे आर टेकन। तो सिमिलरली हमें भी ये माइंडसेट बना के चलना पड़ेगा मुस्लिम्स को भी कि किसी के साथ में कोई पार्शियलिटी नहीं आ रही है। और देखा जाए तो ईमानदारी की बात यह है कि जो जो बच्चे काम कर रहे हैं वो इंडिया टॉप भी कर रहे हैं। कई जगहों पर हमें देखने मिलता है कि मुस्लिम बच्चों ने टॉप किया। तो इस तरीके से ये काम किया जा सकता है और AMP तो बहुत अच्छा काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसीलिए मुझे खुशी होती है कि AMP का कोई सेमिनार या कुछ होता है तो मैं उसमें फ़ौरन जुड़ने की कोशिश करता हूँ कि लेट मी कंट्रीब्यूट व्हाटएवर आई कैन डू टू माय बेस्ट। तो दैट्स अ गुड थिंग यू आर डूइंग मिस्टर रज़ाक। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर फॉर द अप्रिसिएशन। सर आज का हमारा सेशन, आपका जो सेशन हो रहा है ये भी हमारे इंटरनेशनली 20 कंट्री में हमारे चैप्टर्स है वो लाइव देख रहे हैं, जो मुझे मैसेज अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं करके ना आज का सेशन बहुत अच्छा रहा करके। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच सर। सूफिया मैम, यू कैन टेक इट फॉरवर्ड विद द ऑडियंस नाउ। थैंक यू। जी, थैंक यू। नहीं, थोड़ा सा ऑडियंस को और इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरा एक और क्वेश्चन है मिस्टर खान, मुझे अभी आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि इमाम्स का भी रिक्रूटमेंट होता है एंड आई हैव हर्ड टीचर्स का भी, तो थोड़ा सा इसकी आप डिटेल बताएंगे क्या? कुछ स्पेशल टेस्ट या हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ द फॉर द इमाम्स एंड द टीचर्स? ये इमाम्स वगैरह जो है ये JCO रैंक में लिए जाते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के रैंक में। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, जी, ओके। ये नायब सूबेदार सूबेदार वगैरह जो रहते हैं तो हम्म, उस रैंक में आते हैं और इनकी वैकेंसीज निकलती है और ये इसमें प्रीस्ट भी लिए जाते हैं, यानी कि जो पंडित वगैरह रहते हैं ना, तो उसकी जगह डिपेंड करती है कि जहाँ पे वैकेंसी करती है। हालांकि बहुत लिमिटेड रहती है वैकेंसीज, लेकिन साल में एक बार या 2 मरतबा इसकी वैकेंसीज आती हैं, तो उसमें से कुछ लोगों को चांस इसमें मिल सकता है। ओके। अब हमारे यहाँ चूंकि मुस्लिम कम है फोर्स में, तो जाहिर सी बात है कि इमामों की ज़रूरत भी कम ही पड़ती है। अगर मुस्लिम ज़्यादा होंगे वहाँ पे तो इमाम की ज़रूरत भी ज़्यादा मिलेगी और उस तरीके से इमाम की वैकेंसी भी क्रिएट की जा सकेंगी। ज़रूरत तो यह है कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स में अगर मुसलमान होंगे तो उतने ही इमामों की भी वैकेंसीज बन जाएगी। अच्छा, जी। और सिमिलरली फॉर द टीचर्स, मैं टीचर्स का नहीं समझ पाई, लाइक इज इट स्पेसिफिकली फॉर द आर्मी स्कूल्स या टीचर्स का किस तरह से रिक्रूटमेंट होता ये है? टीचर्स का देखिए उसमें डायरेक्ट इनरोलमेंट नहीं है। जो टीचर्स जो ट्रेनिंग लेते हैं तो वो आर्मी के पर्सनल को टीच करने के लिए वहाँ पे कुछ टीचर्स का सिलेक्शन होता है। ओके। ये स्कूलों के लिए नहीं है, इट इज़ नॉट फॉर स्कूल्स। ये आर्मी कैडर्स के जो लोग हैं वहाँ पे उनके लिए सिलेक्शन होता है। इसको एजुकेशन ब्रांच बोलते हैं बेसिकली। तो एजुकेशन ब्रांच में जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं या वहाँ पे जो उनकी जो ट्रेनिंग रहती है आर्मी पर्सनल की, तो उसके लिए जो टीचर्स की जरूरत पड़ती है ये उसके तरफ से। ओके, थैंक यू। तो अब ऑडियंस के क्वेश्चंस ले लें।
Adil Ahmed is asking, can you tell me something more about NCC special entry? एनसीसी स्पेशल एंट्री मतलब ये कि एनसीसी वालों के लिए खास तरीके से वैकेंसी निकाली जाती है, यानी जिन्होंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है, तो फॉर देम दे गिव एन अपॉर्चुनिटी कि डायरेक्टली दे कैन अप्लाई। उनके लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं है, सीधा एसएसबी में बुला लेंगे उनको एनसीसी सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर, और फिर वहां से अगर आप दे क्वालिफाई द एसएसबी तो दे बिकम ऑफिसर, सिंपल। Okay. And is there any chance for BSc science graduate to join Indian Army and IAF? बिल्कुल, they can join Indian Air Force, they can become pilot, even BSc graduates, because the physics and maths is the compulsory subjects at 10+2 level in Indian Air Force. Even आर्मी में भी अभी तो जहाज जो है तीनों फोर्सेज में है, आर्मी में भी है, नेवी में भी है, एयरफोर्स में भी, तो उनके लिए 12th में 10+2 में यानी कि फिजिक्स एंड मैथ्स होना कंपल्सरी है, एंड इफ दे possess that so they can apply and there are different exams. अगर इनकेस अगर आर्मी में जाना है तो उसके लिए ये आर्मी के अलग से वैकेंसीज निकलती हैं, और अगर एयरफोर्स में जाना है तो एफकैट का एग्जाम होता है, उसके थ्रू जा सकते हैं, और फिर स्पेशल एंट्रीज भी निकलती हैं, तो डायरेक्टली दे आर कॉल्ड फॉर द एसएसबी एग्जाम विदाउट एनी रिटन एग्जाम, so they are also they can go, depends upon their age criteria. Okay. And physical fitness, I think you have already explained, but still physical fitness test mandatory for any post. हाँ, हर चीज के लिए फिजिकल फिटनेस मस्ट है, जी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. In TGC, that is technical graduate course or other technical service, which branches of engineering are eligible? Almost all, including AEL यानी कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और AEM मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और जो आपकी दूसरी जो है आपके मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और बीटेक, सभी ब्रांचेस की जरूरत पड़ती है। मैंने बताया कि ये खुद अपने अंदर एक दुनिया है, इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड विद इन, तो एक इसमें इकोसिस्टम है, yeah, where you need all these. हाँ, तो हर चीज की जरूरत पड़ती है, हर प्रोफेशन की जरूरत पड़ती है, चाहे टेलीकॉम का हो चाहे किसी भी चीज का हो। यानी कि टेलीकॉम के बारे में अगर मैं बात करूं तो यानी कि आर्मी का अपना नेटवर्क अलग है, एयरफोर्स का अलग है, नेवी का अलग है। यानी कि अगर बाहर के जितने भी नेटवर्क आपके मोबाइल के या लैंडलाइन के सिस्टम कोलैप्स भी हो जाते हैं, तो आर्मी का नेटवर्क कोलैप्स नहीं होता है, एयरफोर्स का नेटवर्क कोलैप्स नहीं होता है। वी हैव डिफरेंट टावर्स एट डिफरेंट प्लेसेस, और कंप्लीट सिस्टम उनका अपना अलग है, तो उसकी बेस के ऊपर कम्युनिकेशन जो है कंटिन्यू रहता है। तो हर चीज के अंदर दे आर सेल्फ सफिशिएंट इन फैक्ट। Yeah, related to that, Muhammad Asif Ali hai, he has two questions. Dental corps ke like army dental corps kaise join karen, और he is asking about the reservations if there is his father is a retired Subedar major officer and he wants to join army dental corps and he is currently in BDS 4th year. तो ही कैन अप्लाई थ्रू दैट, एंड मोरओवर फॉर द एक्स सर्विसमैन जो हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि इनके वालिद सूबेदार थे, तो फॉर दैट मैटर स्पेशल कंसेशन इज देयर, कंसेशन इन द सेंस के दे आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, एंड जो उसका रिटन एग्जाम है वो आई थिंक दे आर स्किप्ड, एंड देन दे आर कॉल्ड फॉर द एसएसबी। एसएसबी इज कंपल्सरी बेसिकली फॉर ऑल द these things exams to join to become an officer in armed forces. SSB is very compulsory. And dental officer की post is there in Navy and Air Force as yes, well? yes, हर जगह पे है। BDS भी है, आपको सर्जन में मिलेंगे, स्पेशलिस्ट में मिलेंगे, आपको MD डॉक्टर्स में मिलेंगे, हार्ट स्पेशलिस्ट में मिलेंगे, सब चीज मिलेंगे, बिकॉज ऑल द फोर्सेस, तीनों फोर्सेस में अपने हॉस्पिटल्स अपने अलग हैं, तो देयर इज नथिंग कि वहाँ पे किसी चीज का सर्जन की या उसकी जरूरत नहीं है, सब चीज की जरूरत लगती है, इवन द डेंटिस्ट भी। आपने लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भी बताया था, कैन यू प्लीज स्पीक वंस अगेन अबाउट दैट इज जज एडवोकेट जनरल, और उसमें जिन्होंने लॉ ग्रेजुएशन किया हुआ है 55% मार्क्स उनके होने चाहिए। अगर इतने मार्क्स हैं उनके पास तो दे कैन अप्लाई फॉर दैट, दे कैन बिकम लॉयर। उसको जज एडवोकेट जनरल की ड्यूटी रहती है, और डिफेंस से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं वो उनको फॉलो अप करना पड़ता है इन सिविल कोर्ट्स। हाँ, इस तरीके का काम रहता है उनका। और अगेन वन मोर क्वेश्चन, बीएससी ज़ूलॉजी स्टूडेंट्स क्या मेडिकल कॉप में अप्लाई कर सकते हैं? ज़ूलॉजी वाले? हाँ, ज़ूलॉजी। नो, आई विल हैव टू चेक ज़ूलॉजी का क्या है। जी, मेडिकल तो है, आई एम श्योर। हाँ, बट हाँ, ज़ूलॉजी की ब्रांच से रिलेटेड इट्स डिफिकल्ट टू से कि क्या होगा। क्या फॉर एनसीसी एंट्री यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड,
Yeah. NCC certificate and the date and application. So you need to check Zainul Abidin. You need to keep an eye on when to Whenever the apply. vacancies are coming, I keep posting a small videos for that effect. To that effect. अच्छा, okay. तो ये है कि मैं खुद भी थोड़ा सा कुछ वीडियोस बना करके डाल देता हूँ कि ये वैकेंसीज आई है, दिस इज द रिक्वायरमेंट, दिस इज द डेट, तो जरूर इंटरेस्टेड हैं दे कैन फिल अप द फॉर्म एंड दे कैन Okay, अप्लाई one more मोस्ट question. वैकेंसीज. Is there any special system for joining military police? मिलिट्री पुलिस के लिए यू नीड हाइट. It has to be 173 centimeters more. I mean, it should be more than 173 centimeters. Then you can join the military force. तो उसमें हाइट अगर कम होती है तो यू आर नॉट टेकन. एंड उसके लिए भी वैकेंसीज अलग से निकलती हैं, अलग से इन द सेंस के ट्रेड वाइज निकलती हैं. जैसे मैंने बताया जनरल ड्यूटी के लिए या उसके इसके लिए अपना स्टोर कीपर्स क्लर्क के लिए, इसी तरीके से पुलिस के लिए भी निकलती है वैकेंसीज. और उसका थोड़ा सा फिजिकल जो उनकी हाइट है वो थोड़ा ज़्यादा मांगते हैं. रेस्ट ऑफ द थिंग इज ओके, नॉर्मल. तो उनका सिलेक्शन उसी तरीके से होता है. ओके, थैंक यू वेरी मच मिस्टर खान. सारे क्वेश्चंस के आंसर आई होप ऑडियंस को मिल गए होंगे. थोड़ा सा एक क्वेश्चन अभी भी मेरे दिमाग में है. आपने कहा कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, बट सम टाइम इन नियर फ्यूचर आई विल डेफिनेटली आस्क यू कि हम कोई एक रोड मैप तैयार करें. जैसा आपने कहा कि आप जैसे ही ओपनिंग्स आती हैं तो आप एक वीडियो डाल देते हैं उसका बना के, या इसके करियर से रिलेटेड राइट फ्रॉम 10+2 और इन सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज यू हैव आल्सो स्पोकन अबाउट 8 I believe, and the age also, like from the very young age of 9 to 23 years. So I think there is a lot of opportunities which we need to create awareness. तो आप definitely हमें guide कीजिएगा कि हम किस तरह से इसको कैसे हम popular करें. You have also spoken कि 2-3% ही होता है Muslims का representation. So we really need to brainstorm as to how to promote it and how to go about it. And thank you very much for the wonderful session. I would be talking to you once again in the next session for the Inshallah. Navy and others. Thanks a lot. This was quite informative, quite comprehensive, and you yourself is a role model. If the students, the youth can take it right from your move to join early and take the voluntary retirement, and yeah, now you are doing wonderfully in your civil life as well. Thank you so Thank much. you. Yeah, thanks a lot. Now officially we are closing this session. Thanks a lot, Mr. Thank you Khalid. very much. Assalamu alaikum.